So when I started my journey as a health coach few months back, that time I just had one thought कि कहीं से बस एक celebrity client मिल जाए. I just wanted to work with a celebrity. At that time, little did I know that I will actually manifest this. And I manifested a manifester herself, who is also Mrs. India Overseas 2024. Ladies and gentlemen, we have Arshdeep with us. Hello, Thank Arsh. you. Thank you so much, And Ritu. Thank you for having me here. can you please introduce yourself to our lovely audience? Yeah, sure. For everybody, I am like them, जो उन्हीं की तरह हेल्थ कॉन्शियस है और अपने इस जर्नी पे हूँ. बट इफ़ यू वांट टू नो बिट अबाउट माय लाइफ व्हाट आई डू, सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन. दो बच्चों की माँ हूँ. आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स born and brought up in भारत. And I'm a crowned queen with the title Mrs. India Overseas 2024. And I'm also a life coach by passion. I teach people how to create a life of their own dreams, as you mentioned about manifestation. And I'm a motivational speaker and a very frequent international travel. So my business mainly is in Bharat. So I do travel very often. So, what made you want to lose weight? Was it a personal reason or a health related reason? Beautiful question. Many reasons. So I'll start with myself first. Okay. I've always been comfortable with my body. So मैं पंजाब की सिखनी हूँ तो पंजाब के लोग तो known to have the chubby bodies, and I have never been a like patali thin lean body. I never had, but I was very comfortable with my body. I was not fat, but I was chubby. But over the time, I had two pregnancies as well, and age is growing. And then COVID के बाद तो like my sitting job, I have been working for 16 years. तो ये सब कुछ मिला के जो आपका belly area पे थोड़ा fat होने लगा. But I used to dress up in a way that it would not make me uncomfortable. One day I was talking to my daughter. So we have this like really deep conversations and stuff. And I was asking my daughter that when you grow old and be mother, uh, how do you like to be? Okay. So she paused and then she said, mm, just like you, but little less fat. That's what she said. And you don't know that story yet, right? So that was the Yeah. first one. I was laughing. I was not like disappointed or, started hating my body or anything. But that was kind of, a pointer in my head to think about it that, oh, बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं, they are the ones who love you unconditionally, but there might be something which is not fitting in their head in with your image. So that was the first thing. Apart from that, my brothers, my cousins, siblings, they will always kind of bully you for your body. And that too when my siblings are like very regular fit. My sister is very slim and my brother is very regular fit as well, तो मैं ही मोटी थी सबसे. So but that didn't bother me. But the third thing which really like when I really decided, that time I used to take casually, but I parked that thought in my head कि करना है करके. One of my mentors, Blair Singer, he says in one of his programs, he said, as a coach, as a leader, you should be the fittest person in the room. Okay, so no matter how master your skill, your craft, if you don't look fit, then somewhere people feel that you have lack of dedication or discipline. How would you, like, you are not authorized to teach them? Subconsciously it gives that message. And that was true in a way. I was feeling okay, I had bloating issues and stuff because of frequent travel, but I was not like that uncomfortable. And just after a few days of that session, I was addressing a stage as a motivational speaker, and I was very happy with my dress and I did wonders. After a month, my photos came. Oh my god, I'll send you those photos. You can just put in here. Like I was like, मैं तो इतनी मोटी नहीं लगती हूँ, ये कैसे फोटो खींची है इन्होंने? ये तो हो ही नहीं सकता. मैं तो I'm not bad. It's just the photographer is bad. But that made me think, यार शबी इतना you have to you go for a lot of seminars and you go do the stages. So क्या नुकसान है? And वैसे भी I was not at my happy weight if I look at scale. So I started from 85 kgs.
So that is where I was at around that time. And मुझे जो मेरा happy weight था, that was between like 60 and 65. That is my happy weight. And that weight I had for years before my marriage. एंड व्हेन आई कंसीव्ड माय फर्स्ट चाइल्ड, सो मैरिज के बाद मैंने फिर से 10 किलो गेन कर लिया था, बट आई हैड माय चाइल्ड अबाउट 3 years आफ्टर माय मैरिज, एंड उस टाइम पे मैंने आई रीच टू दैट पॉइंट, बट सिंस देन उसके बाद फिर कभी भी आई डिडंट रीच टू दैट 60 वाला जोन, सो आई वाज 70s एंड देन 8, नाउ कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई वाज 85. So yeah, that was my weight story and my kind of those moments when I decided. I think a lot of people will relate with you. They are kind of comfortable in their body, but they might not be feeling their best self, like maybe in terms of confidence. And there are like many things. When you are actually, the fittest person in the room and fittest according to your body, the kind of energy you radiate is very different. So, my next question is, why did you choose me? I'm such a new person in the industry. आपको ऐसा क्यों लगा मैं आपका वजन कम करवा पाऊंगी? There was like absolutely no proof of work Yeah, for you from my end yeah, because I was just starting at that time. So, yeah. why did you think I'll be able to help? Okay, beautiful question. Three reasons I would give. So the first reason is, of course, I am into spirituality, and somewhere, you feel that connection with people without knowing yet their name, without, knowing much about them. So I felt a very instant connection. Although, you're like that girl, like my younger sister. We don't have, like we don't have anything relatable in a way. But I don't know, when I was watching your video, I don't even remember how your video came in front of me. I was not actively looking for coach, by the way. I had it in my head, but I thought, okay, because I joined few other programs in the past, and I was like, okay. But suddenly your video came, and there was this instant connection which I felt with you. And then I think that was the video when you actually mentioned about taking a few clients on board, and like you were throwing an offer. Then I went to your channel just to see that brings me to the second reason. Although, as you mentioned, there were not no testimonials and stuff, and I myself was a coach, right? So we know how business work, like you need to have testimonials, reviews and stuff like that. But we also know, like, I help people to get trained to be a coach. So I think that blessing which I had to see the potential, maybe that was there. But what technically impressed me is your approach of research. So you might not have testimonial. There might be multiple reasons. You might not have just posted testimonials. You might have already. You might have worked with people, right? How would I know without just making a decision I'm not contacting her? So I would better contact you, right? And I told you clearly when I contacted your team that, I have few questions. I need to see whether we are the right fit for each other. It's not just me, whether I like the dietitian. Like we should be good fit. I should validate what I felt instantly with you, right? And the third thing, I felt you're very serious and you're very transparent as well. Like you yourself said in one of your videos that you're working on you were doing your study for certification, but it does not mean you're not an expert. You might have more experience than the people who just studied the certification. So these were the major 3 points which really attracted me. And after that, when I contacted your team and we booked a call, we were like we were been talking for 2 hours, I think. So I think that connection we built immediately, and we didn't even see that curve where I was kind of trying to validate you, and okay, now I'm agreeing, now you're throwing offer, and now I'm on board. It felt like as if I was onboarded, like first 5 minutes, within first 5 minutes, and we started talking about next plan of action. So yeah, these are the three reasons which I feel. I think that connection is very important because, like, after we get together to work on your health, we are constantly in touch. I think I'm the first person you speak to after you wake up, and the last person. Yeah. Yes. Yeah, agree, agree. So it's Yeah. actually that kind of a relationship between us. And yeah,
सी दे से लाइक आपके नेबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना हो, आपके रिलेटिव के साथ होना हो, आपका जो डॉक्टर है, सो डॉक्टर व्हाट इट मीन्स, लाइक द पर्सन हु इज कंसर्न फॉर योर हेल्थ, यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद देम, यू शुड एक्ट लाइक अ स्टूडेंट, नो मैटर आपकी अथॉरिटी क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, एक्सपीरियंस क्या है, एज क्या है, और इवन लाइक यू नो लाइक यू माइट रिमेंबर व्हाट आई वाज टेलिंग यू, क्योंकि मैंने खुद अपने पे खुद काम करके अपना वेट अच्छा खासा, लाइक 11 kg आई लॉस्ट व्हेन आई कंसीव्ड माय डॉटर। तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है ना, हम अपने आप को दिग्गज समझते हैं कि मुझे तो सब पता है, ये छोटी सी लड़की, लाइक व्हाट वुड शी टीच, एंड यू नो वी ट्राई टू ओवर पावर, बट द थिंग इज वी नीड टू कम विद द राइट माइंडसेट, जस्ट यू नो गेट enrolled एज अ बेबी, एज अ ब्लैंक स्लेट। अगर आप इतने बड़े दिग्गज होते ना, तो यू डिडंट नीड टू गो टू द डाइटिशियन, है ना, 10 साल आप 85 में ना घूमते। सो एक्सेप्ट दैट पीपल, सो एक्सेप्ट दैट अर्श, and then talk to her. Okay, I do throw a lot of silly things on you, like you know ask, okay, ये मेरा ऐसा मैं सोचती हूँ, of course you know better, this is how my audios always are. So yeah, a relationship is very important, and yeah, of course, the person who is helping you in your health, what else you need in your life. Right. You know, your audios always come like it कि मुझे ऐसा लगता है, but of course you know better. There is that humility in your audios. Yeah, Otherwise, people are like, okay, ये ऐसे ही होता है. yeah, आप मुझे बताओ अब ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? yeah, yeah, we try I to be get that. gyanis. Yes. So, as you mentioned that you've lost a significant weight before starting the diet. So, you lost a certain kg, but then you were at 85 for a long period of time. Yeah. So, what were the three main reasons जिसकी वजह से आप डाइट या तो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, बट किसी भी रीजन की वजह से, तीन ऐसे रीजंस जिसकी वजह से बस नहीं हो पा रहा था? Yeah. So I'll share two experience. One experience without a dietitian and the other experience when I did by myself. पहले तो अपने जब मैं खुद कर रही थी, सो आई फेल्ट आई हैड नॉलेज बिकॉज आई हैव डन इट बाय माई सेल्फ, है ना, तो मेरे पास एक प्रूफ था, तो मैं वो वाली चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, बट वट आई फेल्ट लोनली ना, मतलब मैं ही कर रही हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक यूजुअली गर्ल्स को होता है उनके पार्टनर क्या कंप्लेन करते हैं उनकी बॉडी के बारे में, बट इन माई फैमिली इट वॉज नेवर एन इशू, लाइक you know I never got it from my partner that you know you don't look good or bad or like that, तो वो एक तो पुश भी नहीं था, और एक लाइक ही वाज एट पीस विद इट, तो कुछ इतना है नहीं था कि मैं कर रही हूँ तो आई हैव अ वेरी बिग रीजन. Second is when I was doing for myself, and you know we are busy mothers, सबके लिए कुक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके सिर पे कोई बॉस नहीं बैठा ना, जिसको लाइक आपको शर्म आएगी थोड़ी कि अरे मैंने डाइट ब्रेक कर दी, खुद ही को तो बोलना है ना, चल फिर योर माइंड मेक्स दोज स्पाइरल्स विच आई कॉल जलेबी, यू नो दैट राइट ऑलवेज. तो पक्के हलवाई, हम हाथ से हलवाई होना हो यहाँ से तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं टू मेक दोज जलेबीज, and my mind used to you know throw those things on me, making me victim कि चलो तुम बहुत थकी हुई हो, रहने दो. आई वुड नॉट, कबूतर एंड बिल्ली वाली वो एग्जाम्पल होती है ना, लाइक बिल्ली इज देयर बट कबूतर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है खतरा टल गया. सो सिमिलरली आई यूज टू डू विद माई वेइंग स्केल. मेरे घर में कोई वेइंग स्केल नहीं यूज करता, मेरे माई हस्बैंड इज वेरी लाइक फिट एंड ऑल दैट, सो ही डजंट नीड, एंड तो मेरे रूम में वेइंग स्केल रहता है, एंड आई वुड नेवर चेक माई वेट. मतलब क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ना उसने क्या कहना है, राइट. सो बट ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव समवन, you know कि अभी कुछ ऐसी चॉइस, व्हेन यू मेक दैट चॉइस और ब्रेक दैट चॉइस, यू हैव टू रिपोर्ट मैन, कल को मतलब डंडा लगेगा तुम्हें, शर्म आएगी. एंड ऑल्सो समवेयर इट, व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी आप मेरे घर से नहीं आए थे मेरी जेब से पैसे निकालने, या हाथ पकड़ने के चलो चलो मेरा प्रोग्राम ही तुम्हें जीवन सफल करेगा, आओ. इट वॉज माई चॉइस, राइट. सो इट वॉज माई डिसीजन. नो मैटर आपके पास कैसे आपने पैसे जुटाए हैं आपके पास बहुत ज्यादा फेंकने के लिए, नो मैटर, बट what defines आप कैसा person हो if you don't hold the responsibility. So it was more of like I told you that this is not just a weight loss for me. मतलब for me it is like I am challenge, I love challenges, and मैं कोई भी काम खुद से वैसे ना आए मुझे, या खुद ना करूं तो अलग बात है. इफ somebody said
कि तुम नहीं कर सकती, मतलब चैलेंज लेके मैं हारना, मैं कैसे हार, लाइक आई वुड नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ हारना विदाउट पुटिंग एफर्ट। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट एज अ फेलियर, बट मैंने एफर्ट ही पुट नहीं किया। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ है ना, वो तब होती है व्हेन यू कमिट इन फ्रंट ऑफ समबडी। सो व्हेन दैट वाज नॉट देयर, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। फिर बाकी सारे एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, दैट आई डोंट हैव टाइम, आई एम ट्रैवलर। जब ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में कुछ मिल रहा है, एंड आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, एंड आई एम वेजिटेरियन एज वेल, सो एनी वे आई एम नॉट लेफ्ट विद मेनी ऑप्शंस। एंड कई बार काफ़ी लंबा स्टे होता है, सो एयरपोर्ट पे बासा तबासा, वो मैदा, वो सब मुझे खाना, एंड ऑल दैट, राइट। एंड वैसे उसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट योर माइंड काइंड ऑफ ट्रैप यू कि नहीं, तेरी तो कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट द सर्कमस्टांसेस आर नॉट हेल्पिंग यू, right? So I think these were the biggest reasons when I was doing by myself. Now let's consider that you are not the first dietitian I consulted. In between, so when I lost with my lost weight during the pregnancy, then I gained after the pregnancies. That time, I in 2021 I got onboarded with a very renowned dietitian plan in Bharat itself. The reason I was choosing Indian dietitians, because I'm very much Indian in food and all my habits and stuff. So I thought, I did try paid apps as well, by the way, I forgot to tell you. So I think that didn't work, and there's this app, it was, I think, Indian app, like it was able to recognize calories and stuff from Indian food as well. So I tried so many things, but again, जब human touch नहीं है ना, then you miss. But in that program, I had a person assigned to me, but to me, I felt there was reporting, there was support, there was everything. She was checking on me. She was trying to give me alternatives if something was not working. But I felt that girl was working for a bigger company as a coach, right, or assistant coach or whatever. It was just her job. So I didn't feel that connection. I mean, it's not her fault. It's not the program's fault. I am saying it's my fault. But I think this was another reason subconsciously to come to you, that you are not like a big brand. तो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मेरे पास ना, मतलब जब तक मैं 1,000 लोगों की कंपनी नहीं बना लेती, तो कंपैरेटिवली आज मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो इस टाइम एडवांटेज ले लो। लाइक दिस इज हाउ आई चीकी, माई चीकीनेस आई जस्ट ब्रिंग देयर, कि भाई एडवांटेज ले लो। तो सेम थिंग इज लाइक व्हेन यू आर नॉट बहुत ओवर द टॉप, लाइक इतना बड़ा ब्रांड नहीं है ना, तब आपके पास एक विलिंगनेस भी होती है, आपके पास टाइम कैपेसिटी भी होती है कि आप पर्सनल अटेंशन दे सकते हो। Like we talk not just about diet, we talk about lot of stuff, right? Like you cry when my diet is not working, or if there were days, and although I was feeling fatigued due to other reasons, but you were beating yourself. And so there's like, आपके दर्द में जब कोई दर्द फील करता है और आपकी खुशी में कोई ताली बजाता है ना, then आपका जर्नी बड़ा मजेदार हो जाता है, आपको कोई हमसफर मिल जाता है। So this is what I felt with you. I remember when we started for at least 25 days. So in the weight loss program, we were together. तो आपको मुझे रोज सुबह वेट भेजना होता है। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे पास सबके वेट आए हुए होते हैं। तो उस टाइम पे सबका वेट कम हो रहा था, रोज कभी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। मैं फोन देखती हूँ, अर्शदीप का आता है 77.7, रोज 77.7, 25 दिन तक स्ट्रेट। मुझे लग रहा था मेरे ज्ञान में कहाँ कमी है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को डाइट पे डालूं। ऑल्दो डाइट के पहले मैंने सब कैलकुलेट किया था कि आप क्या खा रहे थे, तो Yeah. मैंने बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड आपकी कैलोरीज कम करी थी। पर फिर भी वो 25 दिन तक 77.7, 77, आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड विद दैट नंबर। मुझे लग रहा था कि क्या हो गया, मतलब वो मैं देखती थी क्या रही फिर से 77.7। आई यूज्ड टू लाइक फॉल asleep again for 30 minutes just in that disappointment, I would say. Yeah. मैं तो चलो सैड हो ही रही थी, बट अर्श वाज कूल फॉर सम रीजन। इनको ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल कम हो जाएगा। उनने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि ये कैसी डाइट आपने मुझे दी, कि मैं डाइट कर भी रही हूँ, ये रोज 77.7 दिखा रहा है। आप क्यों फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, आपको हो जाना चाहिए था। लाइक दैट वुड हैव बीन अ नॉर्मल बिहेवियर, एंड आई वुड लाइक टू कन्फेस
एक बार आपने खुशी दिखाई थी जब आपका कम हुआ था, तब यू वर हैप्पी अबाउट इट. देन आई फेल्ट ओके शी इज अ ह्यूमन. मुझे लगा दुखी नहीं हो रही है तो शायद खुशी भी नहीं होगी. मुझे Yeah, लगा I ओके remember. नाउ आई एम डीलिंग विद अ ह्यूमन. Yeah, So yeah, so I why remember were you you. not frustrated? Yeah, why were you not frustrated at all? Yeah. So first thing is it goes to that same point which I mentioned earlier, responsibility. Like you have taken responsibility. Here it's not a blame game. It's not just your health coach's responsibility. She's a guide. You have to walk through the journey. She's with you as a guide, but you have to walk, right? तो जब आपको पता है भाई बैटल है, बैटल फील्ड है, आपने वहां पे इतना वो करना है, पहली खरोच से ही डर गए, फिर क्या? तो अभी तो पता नहीं क्या क्या होना है, राइट? द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, when you don't see it as a destination, you see it as a journey, you enjoy the process. मतलब वही है ना, अरे हम जिस काम को शुरू कर लेते हैं हम वो खत्म ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता. इट्स लाइक दैट. एंड नाउ आई एम नॉट अलोन, यू आर विद मी, राइट? मीन्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इज विद मी. तो पहले मैं सच बताऊं, अगर मैं खुद से करती और मैं ये कर होता मेरे साथ सेम बिहेवियर, मैं शायद फील करती. ओके, ऐसा नहीं है कोई मतलब मुझे फील ना हो तब, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को डाउट करती, है ना? तब लेकिन जब मुझे आपकी नॉलेज पे ट्रस्ट था, सो दैट इज द सेकेंड थिंग जो मैंने पहले भी बोली, व्हेन आई केम ऑन बोर्डेड, सो आई न्यू कि अगर रितु के पास आज आंसर्स ना भी हो, ऑल्दो यू ऑलवेज हैड आंसर्स वट एवर प्रॉब्लम्स आई वेंट थ्रू, बट like that thing was like my base belief, foundation, I would say foundation was very strong, mental foundation. As all the top mentors say that it's 80% mindset and 20% technical steps you take, whether like what you eat, when you get up, walk, all of that. So I had that in mind that if I'm stuck, if we are not able to decode it right now, Ritu will get there. So मेरा वो था, अभी कोई नहीं ना, मतलब हम दोनों हैं तो मतलब हो जाएगा ना. एंड गुड्डी है ना, मतलब इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई केम, इट्स लाइक यू लूज विद ऑफर, यू लूज सर्टन केजीज इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, फिर तो रिलेशनशिप और जल्दी एंड हो जाता ना. why would we want that, right? We are enjoying, we were enjoying. So I mean that's just on the side note, but the कहने का मतलब, अगर आप जर्नी आप enjoy करते हो ना, then you don't bother about destination. आज नहीं तो कल तो पहुंच ही जाओगे. And you have to accept everybody is different. And for that I think I should thank my brother and sister, because by same कोक से वो birth हुआ है उनका, and they are very different, I'm very different. सो एवरीबडीज बॉडी इज डिफरेंट. जो भी हेल्थ कोचेस हैं या फिर जो स्टडीज हैं, दे कैन गिव यू अ ब्रॉडर प्रिंसिपल्स, बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, कई बार आपकी सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बट द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स आर मीटिंग, दैट विल बी वेरी डिफरेंट. सब्जियां, सेम सब्जी में खा रही हूँ जो आप खा रहे हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, हवा पानी कैसे जलवायु में वो ग्रो हुई है, नर्चर हुई है, it is different. It will create, sometimes it makes you feel bloated. Yesterday I had a friend, she came over and she's very much like into nature and all that, so she grows her own potatoes and few other veggies in her garden, and always brings those things to my home. She mentioned that, Arshi, when I'm eating, I can tell you, like if I'm eating same sabji, potato sabji, two different dishes, I can tell you these potatoes are, this sabji is from my garden potatoes and the other ones are from others. So like even the same dish, right, it can create different impact on your body. So I think coming from that spiritual background and understanding the energies and stuff, that was also helping me. But it's not like subconsciously I had to process anything. I was just like, cool, I'm in safe hands. I told you many times, I'm in safe hands, so I don't have any doubts or anything. So yeah, I think that was the reason. Mindset. Yeah, that was very kind of you. Like, I was doubting myself, you were not. So that gave me confidence that, okay, I can figure this out. Yeah. But although we were not losing weight at that time, I think you were still feeling some changes in your body. Can you talk about those changes? Yeah, sure. As I mentioned before, there are multiple reasons, but a lot of times I felt like the major thing I had was bloating. Okay. So, one reason was because my work pattern is like that, sleep and all that. Second, wheat के साथ मुझे बहुत वो सब चीज़ें होती थी. So, and
somewhere I was bit surprised. We actually talked about our weighing machine as well, कि weighing machine तो नहीं खराब हो गई, because the kind of changes I was feeling, it was not showing there. So I felt lighter. Definitely, I started feeling lighter like within 2 3 days, initial days, and we did not do like massive changes like out of the world के जो मैं पहले चीजें नहीं कर रही थी. You adjusted and you kind of put structure to things. Like I was still eating, kind of considering healthy, but portions were, I never measured my portions. I had a weighing scale, but I never used it. I only bought it to make my panjiri after my kids. After that, I had to change the battery and all that. So the changes I was noticing, I was feeling lighter, and bloating was not there. Even like I showed you very close ups of my face. मेरी eyes बहुत जल्दी show करती हैं like when I'm bloated. So that was not there. What I used to feel, I think that I didn't share with you. मेरी ना जब bloating होती है, so some of my body parts, if I touch, like it kind of like hurt. Like I can figure out that this is bloating. Like some parts in my body, because that water एक वो जमा हो जाता है कुछ कुछ पार्ट्स में. So that gone, that was gone. So lot of those subtle changes, you would not like, people might not notice, but I was noticing it. Scale might not notice, but I was noticing it. So lighter, less bloating. And when you feel lighter, रात को ना मुझे बहुत बार वॉमिटी फील होता था बिफोर. इवन मैं कम भी खाती थी या कभी छोड़ भी देती थी खाना, फिर भी फिर वो वाला फीलिंग, नॉजियस फीलिंग कम हो गई. Like almost I think vanished within a week. So that these were the major changes. What kind of compliments are you getting from, Yeah. people around you? Before that I'll mention, I started from 85 and now I'm on 72. Okay. So Ritu is very generous. She doesn't take all that credit. But yes, this journey has been like huge. Okay. So yeah, I mean, we were very up and down, 78, 77. That's where we started when we came. So now compliments, coming back to the compliments. I would even consider how I was when the day I came with Ritu. From there to now, like the biggest compliment. So before coming to Australia, we were in Noida. And the happy weight I mentioned, that was my Noida weight. My husband, like whenever we are talking about those things, he would always say like, how you were in Noida, how you were in Noida. This is how he refers many times. Few days ago, he said कि आप ना नोएडा, लाइक नोएडा में जैसी लगती थी वैसी लगने लगी हो. So this was a biggest like compliment. That is before my kids, that is like, pretty much just after the marriage and stuff. So this is the big one. And second, of course, all my dresses, like some of the outfits I just liked and I bought, but now I can wear. And this dress is one of those. This is like I wore it for the first time and now it's loose. Earlier, I was not wearing because it was tight. So now it's loose. So that is another one. So people do notice. And बाहर के तो लोग like कहते हैं आपने क्या करा अर्शदीप जी, कहाँ चला गया आपका weight? I don't know whether they're concerned or they're happy. I don't know. But yeah, people are noticing these changes. And they're saying बस कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं वो बस कीजिए. Like, because I think they are not able to accept me in, in this shape. And especially when I was on this weight, we were in different state. Ever since we came to this state where we are living now, people always saw me between 82 and 85. So I think visually it's hard for them to process. And yeah, uh, my students, when I share photos with them, they say like college ki ladki lagti ho. So this is a big one. I'm like nearly 40, 39, nearly like 30, between 38 and 39. And if somebody says this, then it is big compliment for me. You are actually looking very cute, though. Thank you. Yeah. Kind of you. When you mentioned that your dresses are getting loose, it doesn't fit anymore, like in the other way. Yeah. और ऐसे जब दूसरे क्लाइंट्स भी जब मुझे बोलते हैं कि अब ये ड्रेस फिट नहीं आ रही है, लूज हो गई है, ऑल्टर करवाने जाना पड़ रहा है, इट्स लाइक म्यूजिक टू माय ईयर्स. इतना अच्छा लगता है सुन के. It's एक बार like आपने दोबारा कहना. It's like that. That kind of feeling. हाँ, सही कहा. हाँ, ऐसे ही होता है. एंड आपने एक बार मेंशन किया था आपका पॉजिटिव नुकसान हो गया. Yeah, आप like हाँ, आपके
कि कुछ ट्राउजर्स थे जो आपको फिट आने लगे थे। यस, हाँ, ऐसा नुकसान रोज हो, सबका हो। yeah, even like this these winter clothes, winter जब मैं भारत आई थी तो I bought some like very cute pajamas, winter pajamas, और उसका अपर आई कुड वियर, लोअर आई कुड नॉट वियर। वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं था तो शायद उसकी ना वेल रिसर्च मैंने, आई बॉट प्रॉपर साइज बट आई डेंट ट्राई देन। वो उसका जो पजामास होते हैं ना कई बार टाइट होते हैं, एंड नाउ आई एम लाइक वियरिंग दैट लाइक, और कोई तो अभी सभी लूज हो गया, ओनली दैट फिट्स मी। सो वो आई डोंट नो ये नुकसान है या फायदा है ना। सो या दैट इज वन थिंग, एंड नाउ ऑफ कोर्स आई विल बी बाइंग न्यू क्लोथ्स, तो नुकसान में फायदा है। Don't buy now. We still Yeah, have like 6-7 kgs to go. yeah. By summers, Wait, like my summers, we will be ready. yes. Yeah. All in a Yes. diva get. Yeah. Okay. So I'll tell you three changes which I made in your diet when you were at a plateau stage, when you were not losing weight. तो Yeah. ऐसा बहुत बार होता है कि कोई वेट लॉस करने की कोशिश करता है, उसका थोड़ा वजन कम होता है, जैसे आपने किया था, थोड़ा थोड़ा वजन कम किया था, उसके Hmm. बाद वो स्टक हो जाते हैं। उसके Hmm. बाद लोग को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे, ये क्यों नहीं कम हो रहा, जबकि वो सारी, आप तो इतने गुड स्टूडेंट हो, आप तो सब फॉलो करते हो, मेरे पास सारी फोटोज एकदम टाइमली आ जाती थी, तो आई न्यू दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग राइट, एंड स्टिल वो चेंज नहीं हो रहा था। सो Hmm. आई मेड थ्री चेंजेस। सो ड्यूरिंग द प्लेट्यू डाइट आपको मैं अराउंड 45 to 50 grams ऑफ प्रोटीन अ डे दे रही थी। फिर जो मैंने चेंजेस किया, वेजिटेरियन होने के बाद भी आपका दिन का प्रोटीन 90 to 95 grams अ डे था, विच वॉज अ लॉट ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन को उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही बॉडी को बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। प्लस प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स। सो एंड मसल इज समथिंग मेटाबॉलिकली एक्टिव, आपकी बॉडी में जितना मसल होगा आप उतना ज्यादा कैलोरी बर्न करोगे। तो मैंने बहुत मेजर इंक्रीज करा था आपके प्रोटीन में। दूसरी चीज मैंने करी थी, मैंने आपको झूठ बोला था। मैंने कहा कि अगले हफ्ते से मैं आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे डालूंगी। वैसे तो जब दूसरे लोगों का प्लेट्यू आता है और मैं उनको ये चीज बोलती हूँ, वो कहते हैं हम सब तो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कम हो रहा। तो मैं उनको जब ये बहुत ही कड़े शब्दों में ये अल्टीमेटम देती हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा वो ना वो हाथ खुला रह गया था तेल में, घी में। तो मुझे पीपल डू दैट, पीपल डू दैट। तो एटलीस्ट पता तो चले किसके तरफ से क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा घी खाया तो मैं तुमको काला पानी की सजा दे दूंगी, बट एटलीस्ट आई शुड बी अवेयर दैट यू नो दैट नथिंग इज रॉन्ग विद द डाइट। थोड़ा फॉलो नहीं हो पा रहा है, बाद में हो जाएगा। तो जनरली जब मैं वो अल्टीमेटम देती हूँ तो सब सच सच बोल देते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगले हफ्ते से बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे मैं आपको डालू। मैंने आपको अल्टीमेटम दिया, आपने कहा हाँ हाँ डाल लो। तो वो प्रॉपर प्रूफ था कि आपने कोई मक्कारी नहीं करी है डाइट में। वरना आप बता देते कि अच्छा चलो मेरे साइड से ऐसा इशू है। तो वो मैंने अल्टीमेटम दिया था, but that was like a placebo. I did not actually reduce your calories. I just wanted your brain to be to go in that zone कि okay बहुत कम खाना आया है, so let's use fat. So I was trying to use that psychology, क्योंकि ऐसे मैं पूछती थी कि आपको भूख लग रही है खाना खाने के बाद, are you feeling hungry? You were like no, everything is fine, energy level is fine. And even after being in a calorie deficit, so I was like how come the deficit is not working? तो ऑल्दो आपको अच्छा फील हो रहा होता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता था कि रात को सोते टाइम थोड़ी तो भूख लगनी चाहिए, बट इनको लग नहीं रही। तो फिर जब मैंने ऐसा बोला तो नेक्स्ट वीक से आप कहने लगे कि आपको वीकनेस सी लग रही है, आपका ब्रेन फॉगी हो रहा है, ऐसा ऐसा। कैलोरी में कोई कमी नहीं थी। कैलोरी का बस मैंने ये किया था, जो थर्ड चेंज मैंने किया था, मैंने आपकी कैलोरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। मतलब अगर आप एक दिन 1200 खा रहे हो तो आप अगले दिन 900 खाओगे, फिर आप थर्ड डे फिर से 1200 खाओगे। तो ये बॉडी वॉज नॉट रियली प्रिपेयर्ड कि क्या हो रहा है, कितना खाना आने वाला है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था। सो आई डिड दैट कैलोरी साइक्लिंग विथ यू। सो दीज थ्री चेंजेस, एक एक्चुअल डाइट वाला चेंज था और दो मेंटल चेंजेस थे वो काइंड ऑफ, जिसके वजह से वी वर एबल टू ब्रेक द प्लेट्यू। और उसके बाद से फिर 400 300 होने लगा, एंड नाउ वी आर वेयर वी आर। So yeah, those are the, so anyone who is going through the plateau, just increase your protein.
एक्चुअली डबल इट। और अपना वर्कआउट आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी साइकोलॉजी वाली बात मैंने बोल दी तो वो आप पे वर्क नहीं करेगी ना, यू कैन नॉट अप्लाई दैट, यू नो हाउ मच यू आर ईटिंग, सो यू नो जस्ट इंक्रीज योर वर्कआउट, सो दैट्स हाउ प्लेट्यू शिफ्ट होगा। यस। Yeah, just one thing into this, I would add. So the first thing you said, you checked with me many times, प्रोटीन का, जैसे ही प्रोटीन का इनटेक बढ़ाया, स्पेशली लाइक इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी टू हैव अ प्रोटीन शेक, लाइक आई नेवर took any supplements, any proteins before, although my doctor many times said that you should, but anyways. So and also I'm very much like natural kind of person. I'm very scared of, you know, anything made in factory. um, and you checked with me many times on my bowel movement, so digestion part basically. I think that was very seamless. I don't know the whether it is approach you've taken, or whether the timing, and or whether the brand I was taking, because the brand we just researched here, and I think that really helped me. Although, you know, if I was in Bharat, you would know like these are the brands you trust, but in here, when I sent you those websites and whatever I saw available on the shelf, you researched all that through and you recommended me the best. It was like honest thing. So I think that really helped. Second thing, and my body adapted very well. Second thing I'll tell you, you know, when you were asking me, you said okay, I said okay, ठीक है, हाँ मैं कोई उसमें like what I was very clear, like honesty थी, मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं, so that was right. पर जब आपने बोला कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट वो लाइक कुछ वो करूंगी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, एंड नेक्स्ट वीक जब मैं ना बार बार शीट चेक करती थी कि उन्होंने बोला था कि वो कम करेंगी, कुछ मतलब कम करेंगी, तो मुझे असर नहीं हो रहा, तो मैं कहीं मेजर्स तो नहीं गलत ले रही, सच्ची लाइक दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग, कि व्हाई लाइक आई एम नॉट फीलिंग दैट, है ना, अपने पे थोड़ा डाउट कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं। बट एनीवे आई वाज सो मच इन टच विद यू, यू नो, देयर वाज like I was not stuck in that doubt, but yes, I had multiple times. मैंने अपना वो जो किचन का स्पून होता है ना, I still like measure, but उस measure वाले में भी डालने के लिए दूसरा स्पून यूज करते हैं. So I was using the other one, you know, कि कहीं मैं गलती से दो गिनती like कुछ भूल तो नहीं जाती हूँ like that. So that was the second thing. So I think psychology part, जो जो तीसरा चीज है, when I was feeling fatigue and stuff, because there were other things as well. There were periods and also dehydration, because when we started, I think it was it was still my summers, it was like we were in transition, तो मुझे sun से बहुत ज़्यादा हो जाता है, like एकदम, you know, I get hit if I don't cover my head because of like ozone problem we have in Australia. So I think there were like multiple other reasons, but diet wise everything was seamless, like मेरे मुझे कुछ ऐसा बहुत ऐसा नहीं लगा लाइक ओके आज ये इशू आ गया, लाइक लाइक दैट। सो या थैंक्स फॉर दैट। So the point that you mentioned about digesting protein, most of the people, they have hard time digesting protein, क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम से ही वो प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। सो इट्स लाइक इफ यू आर ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट एंड आपका आपका पानी इंटेक बराबर नहीं है, आपका फाइबर इंटेक बराबर नहीं है, और वो प्रोटीन एकदम से आप बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो, तो आप बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए फिर बहुत सारे लोग अगर ट्राई भी करते हैं प्रोटीन लेने का, तो वो कुछ दिनों में छोड़ देते हैं, क्योंकि पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, ऐसी सारी चीजें होती है उनके साथ। तो आपका जो, जब आप 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे पे मैंने आपको डाला था, तो वो भी वो ग्रेजुअली था, क्योंकि पहले मैंने फूड डायरी मेंटेन करवाई थी, तो मुझे पता था कि आप एग्जैक्टली कितना फाइबर कितना प्रोटीन, मेरे पास लाइक सबका डेटा था। तो मैंने बहुत ही 10% से उसको वीक बाय वीक इंक्रीज करा, तो आपका गट रेडी हो गया था। तो पहले आपका गट रेडी किया गया, फिर उसके बाद एज अ लाइक जो होल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो मैंने बढ़ाए थे, और उसके बाद हम प्रोटीन पाउडर पे गए थे। सो इट वाज लाइक, तो अगर कोई भी एकदम से हाई प्रोटीन डाइट पे जाने की कोशिश करेगा, और अगर वो पानी ठीक से नहीं पी रहा है, उसका फाइबर बराबर नहीं है, नहीं डाइजेस्ट होता है, दे विल हैव वेरी हार्ड टाइम। सो ऑलवेज अडेप्ट अ ग्रेजुअल अप्रोच। एंड अबाउट द ब्रांड्स, जैसे इंडिया के ब्रांड्स तो मुझे पता है कि इनका क्लीन प्रोटीन है, इनका नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ब्रांड्स का मुझे सच कोई आइडिया नहीं था, तो मैं मोस्टली न्यूट्रिशन लेबल देखती थी कि उसमें एग्जैक्टली क्या है। तो बहुत सारे लाइक, आई वाज सरप्राइज्ड कि ऑस्ट्रेलिया में
मोस्टली जितने भी प्रोटीन के ब्रांड्स है वो सारे ब्लेंड्स है, लाइक दे ब्लेंड सोय विथ वे समथिंग. इट वाज नॉट कंप्लीटली प्लांट प्रोटीन और कंप्लीटली मिल्क प्रोटीन. सो वी डिडंट वांट दैट. हमें चाहिए था कि वो कंप्लीटली वे ही हो. तो उस हिसाब से मैंने अपनी रिसर्च करी थी. और रिसर्च तो करी थी बट फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं लाइक इसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है नहीं है, डाइजेस्ट हो नहीं हो. बट एज योर गट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोटीन, यू वर एबल टू डाइजेस्ट. अगर आप अभी ऐसी रैंडमली एक स्कूप प्रोटीन लेते भले ही सेम ब्रांड का, आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते. Yeah. सो इट वाज, इट्स लाइक टू डाइजेस्ट प्रोटीन you need to have a very good gut health. Yeah, Yes. and that's another thing. See, like that's the validation of my decision coming to you. Like for example, if I was with a very high big brand, first they would just like it's more like a cookie cutter approach. They would have a list of proteins. Nobody has this time in the world to give me and be on video calls when I'm in the pharmacy picking up the brand or do the website research. Everything has its own pros and cons, right? When we are taking a leap of faith, which I've taken with you, and every time you make me realize that you made the best decision in this respect, right? So it's like at the end of the day it is the same thing. See, when you owned my journey, like it is not just my journey, it is our journey, right? So फिर you operate from that inner space. एंड जब आपको पीड़ी नहीं है किसी की के चलो ठीक है शी इज जस्ट लाइक अनदर क्लाइंट एंड ऑल दैट, then how would things work? It's not just the technical knowledge, it's your energy, the way you put it in. So yeah, thank you so much for that. Oh, so sweet of you. So you did not face any challenge. Can you name any 2 3 challenges जो जैसे जब आपने डाइट स्टार्ट करी तो आपको हुई हो एडजस्ट करने में? लाइक मोस्टली आई हियर कि एनर्जी नहीं है 1 वीक तक डाइट स्टार्ट करने के बाद. दिस इज अ वेरी, बिकॉज कार्ब्स मैंने कट करे होते हैं तो वो, और प्लस साइकोलॉजिकली भी रहता है कि डाइट पे है तो वो होता है. सो एनी challenges which you faced, like 2 3 challenges? You mute हो आप, mute हो. Yeah, not at all. I didn't feel anything on physical level, but on logistics, there were few things. For example, I had a certain day to go to get the groceries. So I have to plan things initially because once you start the diet, like in 2 3 weeks, you would know what kind of ingredients, you would know my preference and availability, and I would know what you would be suggesting. So I will buy in the similar quantity. There were few recipes like I am quite good in trying things. I'm quite open to it, but there were things like which I never did before. For example, corn ki sabji. I am not a corn person. मीठा मीठा नहीं मुझे अच्छा लगता, and I made that, but I really liked it. So I was quite open to it. Then it's more on just the recipes and trying things. Also, usually how I plan, because I'm a very busy person, you know it, like I have to work in different time zones and stuff, and I do have to wake up early because I have to send my children to school and stuff. So सबसे पहला जो मैं द वे आई प्लान माई मील्स, अगर वन टाइम मील एवरीथिंग आई कुक फ्रेश इवन लाइक विदाउट डाइट एज वेल, अगर मैं एक मील में ज़्यादा एफर्ट लगा रही हूँ किचन में कटिंग या वो सब में, तो दूसरा मील आई कीप इट इजी, लाइक आई मेक दलिया और आई मेक खिचड़ी एंड ऑल दैट. But first challenge, of course, like it was, I had to train myself, like every meal was different. For example, we were making let's say upma in the morning, upma or quinoa or anything like that. During the day we will cook a sabzi and ragi roti, and in evening we will make soup, or we will make like soup and stir fry. So it was like initially that was the challenge, like छह चीजें मुझे एक्स्ट्रा करनी है, माय गुडनेस, लाइक हाउ वुड आई डू दैट? बट या आई डिडंट गिव अप, एंड आई व्हाट आई डिड, एक वीक मुझे इस चीज में चैलेंज आया, and then I just picked up, I just sat and I started making. I used to make earlier, but then I started making my family's meal plan accordingly, कि जिस time when I have to cook two things, then I can do cook something like rajma chawal for them, so I don't have to make एक roti, right? Similarly, like ऐसा करके करने लगी. And second, meal prep.
um, those are the tips. Maybe if you want to put a different section, I can share my like all my tips, the ninja one. So ऐਵੇਂ नहीं कहते मुझे वंडर नारी, हाँ. I make things wonderful, like I do all of these things together single handedly. I think that will really help all the other moms and busy people. Okay. So, what kind of food were you eating exactly during the diet? Did it feel like a diet to you? No, I really enjoyed. I really enjoyed. The Sara kuch mujhe to everything is like a treat. Like you were telling me, oh, that's like one thing which I'm God given gift. I'm not a sweet tooth, so I don't crave for meetha meetha. But you were telling me like, have like this sweet and that sweet. But I like you were giving me treat, but I was not feeling like मैं कुछ अपने आप को मुश्किल कर रही हूँ. So everything was very seamless, very effortless, easy. By the time you pick up, like okay, समझ गए एक दूसरे को. I think everything was smooth for me. And moreover, we created this group where we kind of like did like a recipe wall. Recipe ball. Yeah, so Yeah. you shared few and I shared few, which I of course didn't make yet, but it's more like, it looks like I would like it. And then you included, we tested and tried. And the whole point is we are so much in touch, like we're so transparent to each other that, we are doing those tweaks. But after I think 1.5 months, like halfway through the journey, we were like all set. We came to a point like you keep on asking me अगर कोई preference है तो इस week की diet में बताओ. I would just say, no, no, I'm happy, and you just give me that. So that is like how I felt for by following the diet. In terms of what I Hmm. ate, initially we ate quite a few things. Like I ate oats khichdi, I ate quinoa khichdi or pulao, whatever you want to call. I ate when it comes to roti, so I like ragi roti. We ate Rajgira atta roti as well. Um, Chillas, I love moong chilla, moong dal chilla. I'll come to that point. So, moong dal chilla and moong dal wrap. More than chilla, it's wrap for me. Besan chilla also we included. Curry is. I'll come to curry point later on. But we ate so many veggies, like lot of bell peppers, capsicum. Mushroom, I'm not a mushroom person, but I would eat because Ritu has said that. So I did eat in the past, but I don't like that. But I find like eventually I figured out, the way to cook the way I like it. And stir fry, I like stir fry. I love tofu. So you even had that concern, like, are you okay with the soy? Not everybody is very much open to that. I did make my popcorns to make as a snack, but I never like that's surprising. If you are listing four things, three main meals you were listing, and then protein was there, and then fruit was there, and then there was this evening snack. I never ever had to. I think in that way, my previous discipline kind of helped me because I'm not a muncher. Like I'll just like munch. I am very strict to the timing and all that, eating and all that. Usually for dinner, even before starting with you, I was quite like I used to eat early. I would prefer eating early. But when you came, because I have to cook something extra, so I have to cook. तो मैं ना नॉर्मली पहले हम लोग मदर्स क्या करते हैं, उन लोगों का पहले बनाते हैं सबका, देन वी विल मेक आवर्स. सी, पहला तो आपके पास बड़ी वजह नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ और मिसिंग फॉर योर सेल्फ. तो वेरी इजी योर माइंड विल ट्रैप यू. सेकेंड थिंग, यू वॉन्ट हैव एनर्जी बिकॉज यू डन लाइक फॉर एवरीबडी. एंड हो सकता है कुछ लोगों की बॉडी डाइट को ऐसा रिएक्ट भी कर रही हो, दे आर फीलिंग फटीग और एनीथिंग, दे विल बी मोर रेजिस्टेंस. तो मैं क्या करती थी, पहले अपना बना लेती थी. एंड आई यूज टू ईट लाइक 5 बजे, 5:30. उसके बाद नहीं. एंड द थिंग यू मैंशन के लोगों को लाइक भूख लगनी चाहिए, आई थिंक द अदर रीजन वॉज आई वाज स्लीपिंग ऑन टाइम. लाइक आई गेट टू बेडरूम 8 o'clock एंड आई स्लीप अराउंड 9. तो अगर मैंने 5:30 से 6 के बीच में खाया है, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं लेती हूँ. एंड आई लिव इन अ डबल स्टोरी हाउस, कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन द होल टाइम. स्टिल लाइक वो शायद जो भूख वाला टाइम लगने से जस्ट पहले ही मैं सो जाऊंगी, बट माई टमी वुड फील वेरी लाइट. इट्स नॉट दैट मैं भूखी हूँ, बट इट्स लाइक फुली डाइजेस्टेड. एंड वन थिंग गुड सरप्राइज विच आई आस्क्ड यू एज वेल, लाइक मैं ना रात को भी अपना वेट चेक करके सोती थी.
I used to check my weight before I sleep, and then I would check in the morning, like 1.5 kg का difference. And then I asked you, like, कहाँ चला गया? मैं तो अभी अपना bowels भी open नहीं किए. Like, it's the first thing I did in the morning, checking my weight again. And then you mentioned, the digestion में वो हो जाता है. And usually I feel like if I'm doing pranayam or I'm releasing that, by deep breathe or stuff, then it would make more sense. But I was not doing anything. But then, yeah, those kind of concept understanding which you made, it kind of equipped my subconscious. I think the major reason is I was not feeling anything like my mind was not creating its own theories or just whatever YouTube से मैंने कभी ज्ञान लिया हो वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था. क्यों? क्योंकि you were there and you were kind of like addressing each myth. You were not like मैं dietitian हूँ मैंने कह दिया और तुमने follow करना है. You were giving a logical explanation to that, and some areas you were like, mm, I think it comes from your experience as well, or maybe the other people in the similar field you are surrounded with. You know how our mind functions. Like कैसी कैसी वीडियोस हम लोग देखते हैं, हम आपको बोलते हैं कि हमें तुमने सीड्स नहीं दिए, हमें तुमने नट्स नहीं दिए. लाइक हाउ टू टैकल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आई थिंक यू वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो इसीलिए ना माइंड ने ना मुझे कोई ज़्यादा जाल नहीं फेंके मुझ पे. सो दोज थिंग्स वर रियली हेल्पफुल. एंड yeah, so otherwise my diet was very, seamless, and I didn't find, I only found good surprises, not bad ones. Okay. So I want to tell you three reasons why you were able to lose weight. अगर डाइट सेम रखते तो भी अगर ये तीन चीजें कोई इंसान नहीं कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा वेट लूज करना. जैसे आपका 2 स्टोरी का घर है, आप ऊपर नीचे करते रहते हो. मैंने आपको कभी भी ऐसे उतना ये नहीं स्ट्रेस किया कि आप जिम जाओ ही. अभी तक आप जिम नहीं गए हो. स्टेप्स में भी उतना वो नहीं रखा जाता था, लाइक इनिशियली होता था, बट देन आई रियलाइज्ड कि बंदी की जो सो इट्स लाइक हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ लगती है. एक जब हम रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं तब लगती है कैलोरीज, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं. इसीलिए जब आप सो के उठते हो वजन कम होता है, क्योंकि आप जिंदा रहे पूरी रात तो वो ऑर्गन्स ऑर्गन्स काम कर रहे थे. यस. तो एक होता है नीट. तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके आप ज्यादा कैलोरीज नहीं बर्न कर सकते हो, क्योंकि आप कितनी ही एक्सरसाइज कर लोगे, वो शायद दिन का 1 घंटा होता है. बट पूरे दिन जो आप हिलते डुलते रहते हो, लाइक क्योंकि आप सारे मील्स फ्रेश बनाते हो बच्चों के लिए, बच्चों को रेडी करना, पूरे घर की सारी जिम्मेदारी, वहां पे तो उतनी हाउस हेल्प नहीं होती जैसे इंडिया में इतनी अवेलेबल होती है. तो आपका नीट बहुत हाई था, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होते गया धीरे धीरे. ऑल्दो अभी तक हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी है, जो हम करेंगे आगे, बट आपका नीट बहुत हाई था. तो जो भी लाइक अगर किसी को लग रहा है कि वो डाइट फॉलो करेगा, सुबह एक्सरसाइज करेगा और पूरा दिन वो बैठे रहेगा, आपका वजन कम नहीं होगा. यू नीड टू लाइक, जैसे अभी मैं ऐसे मुंडी हिला रही हूँ, आप ऐसे मुंडी हिला रहे हो, ये भी नीट में काउंट होता है. शिवरिंग भी नीट में काउंट होती है. इट्स लाइक मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ, हाँ मैं ऐसे पैर हिला रही हूँ, ये सारा नीट में काउंट होता है. तो एक बॉडी एक रेस्टिंग स्टेज पे जो बर्न करती है, वो सबसे कम कैलोरीज बर्न करती है. लाइक अगर आप देखो तो वो एक्सरसाइज के थ्रू होता है, क्योंकि आप 1 घंटा करोगे, आप कितना ही करोगे, वो उतना नहीं होता. बट पूरे दिन जो आप हिलते डुलते हो, एक उसका रहता है. दूसरी आपकी जो बहुत अच्छी आदत थी जिसकी वजह से आप वेट लूज कर पाए, दैट वाज योर स्लीप. आपकी सर्केडियन रिदम रिदम वाज ऑन पॉइंट. आपको पता है जब हम ठीक से नहीं सोते हैं, और अब जैसे नहीं आप मुझे खुद ही बता देते हो कि मैं ठीक से नहीं सोई हूँ इसके लिए अगले दिन मेरा वजन बढ़ा है, नाउ यू टेल मी. लाइक क्योंकि एक्चुअली में आपका 8% से मेटाबॉलिज्म अगले दिन कम हो जाएगा अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो. तो इट्स लाइक अगर कोई इंसान 24 घंटे काम कर रहा है तो क्या वो अगले दिन फिर से काम करेगा ठीक से? वो नहीं, वो उतनी एफिशिएंसी पे ही नहीं होगा. तो जब हम नहीं सोते हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है. इसके लिए 8% से मेटाबॉलिज्म एनीवे स्लो हो जाता है अगले दिन के लिए. तो आपका स्लीप वॉज ऑलवेज ऑन पॉइंट. मतलब आप, और ऐसा होता है कि अगर आप खाना खाने के तुरंत लाइक 45 मिनट्स के अंदर सो जाओ तो आपकी बॉडी वो रिपेयर वाली स्लीप में नहीं जाती, वो डीप स्लीप में नहीं जाती, वो डिस्टर्ब होती है. तो आपका 5:30-6 बजे खा लेना, 9 बजे तक सोने चले जाना, टाइम से सुबह सन के साथ उठ जाना, दैट प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन योर वेट लॉस. अभी ये मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया था आपको, क्योंकि इट इज समथिंग वेरी इंडिविजुअल है ना. आप
अकेले एंटिटी थोड़ी हो, आपके कितनी सारी चीजें अराउंड होती है। सो इट्स लाइक किसी को कह देना कि, और जनरली फीमेल्स कम टू मी के जो भी हो सो जाना 9 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स लाइक जाने दो जो हो रहा है। सो आई कांट डू दैट टू देम, वो दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग टू देम। सो या, इफ यू स्लीप वेल along with the diet you will lose weight। और अगर ठीक से नहीं सो रहे हो, कितनी भी अच्छी डाइट कर लो, कितनी भी अच्छी डाइटिशियन हो, कुछ भी हो, यू वॉन्ट लूज वेट, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ही रहेगा। और तीसरी चीज जो आपने बताई जिसने आपको हेल्प किया वेट लूज करने में, और आप देख रहे हो कि हम गेन नहीं कर रहे उसको, आप करोगे भी नहीं बाद में। वैसे ऐसा होता है कि जितना स्लो आप लूज करते हो, उतना बहुत उतना डिफिकल्ट होता है। याद है मैं अभी थोड़े दिन पहले कह रही थी कि ये तो 72 से हिल ही नहीं रहा है। मतलब पता नहीं आपका मेरा ऐसा है, जनरली क्लाइंट्स मुझे कहते हैं ये तो हिल ही नहीं रहा है, फिर मैं उन्हें समझाती हूँ नहीं नहीं होगा। ऐसे मैं आपको पूछती हूँ तो हो ही नहीं रहा है, फिर आप मुझे बताते हो कि अच्छा नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। तो यू सेड कि आखिरी, लाइफ में आखिरी बार ये 72 के उस पे हूँ, इसको रह लेने दो थोड़े टाइम, इट विल गो। अपना टाइम काट रहा है, लेट लेट इट हैव इट्स ओन स्वीट टाइम। सो या, तो तीसरी चीज जो है जिसकी वजह से आप लूज कर पाए, स्लोली लूज किया, बट जैसे आपकी स्किन नहीं लूज हुई, अगर आप फास्ट लूज कर भी लेते तो सब बॉडी एकदम लूज हो जाती, फिर मतलब ही क्या वो वेट लॉस का, जब आदमी अच्छा ही नहीं दिख रहा है तो। आप मंच नहीं करते हो, लाइक 3 मील्स है, उसके बीच में भले ही मैंने दिया है, जैसे अगर शाम को स्नैक्स दिया, आप नहीं खाते हो, वो मैंने दिया इसलिए था, मतलब मैं भी नहीं चाहती थी आप वो खाओ, वो मैंने दिया इसलिए था कि इनकेस भूख लगे तो। वरना अगर लिखा हुआ ऑप्शन नहीं है तो आप क्या खाओगे, जो मिल जाएगा वो खाओगे। सो यू डोंट मंच, और वो स्वीट क्रेविंग्स नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप तो एक आइडियल क्लाइंट हो टेक्निकली। जैसे लाइक लोग मुझे पूछते हैं कि एक बूंदी का लड्डू खा लूं, मेरी एक क्लाइंट है, दैट इज 250 कैलोरीज। मैंने उसको पूछा कि एक बात बता, इसे एक खा के तेरा हो जाएगा, दूसरे खाने की इच्छा नहीं होगी? कहती होगी। मैंने कहा तो फिर मतलब क्या, ना मन भर रहा है ना पेट भर रहा है, सिर्फ कैलोरीज एक्स्ट्रा हो रही है, स्किप इट। देन शी अंडरस्टूड कि हाँ यार, अब इसको खा के लाइक इस रास्ते जाने का तो सेंस ही नहीं है। तो वो जनरली लाइक अगर क्लाइंट्स ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, जैसे कोई मेरे को कहता है कि खाना खाने के बाद बहुत मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं उनको कहती हूँ एक काम करो, ब्रश योर टीथ, देन यू डोंट फील लाइक ईटिंग स्वीट्स। तो टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी है जो जिसको जैसे जरूरत पड़ती है तो मैं देती हूँ, बट आपको मंच ही नहीं करना है। कुछ लोग की आदत होती है कि इसलिए खाली बैठे हैं तो कुछ तो खाएंगे, जस्ट वी कांट सिट लाइक दैट, तो उनके लिए भी कुछ सोल्यूशन होता है, बट आपके लिए मुझे वो सब करना नहीं पड़ा। तो ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से डाइट डाइट तो थी ही, वो तो आपने पूरी फॉलो ही करी, बट ये जो 3 ऐसी सबकॉन्शियसली आप ये चीजें कर रहे थे जिसकी वजह से आपका वेट लॉस बहुत सही से हुआ है। सो लेट आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन कि ये रोज सेम खाना खा रही हैं, बहुत खुशी से खा रही है। ये कैन यू बिलीव, डाइट में से कढ़ी कढ़ी और वो सामक राइस खाए जाते हैं। सामक सामक राइस वो पहले खा रही थी, अब तो वो भी बंद कर दिया है, बड़े चाव से, बिना किसी तेल। मैंने कहा ऐसी कैसी कढ़ी बना रहे हो, खा रहे हो, दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, कैसी कढ़ी है? देन शी सेंट मी द वीडियो, देयर वाज नो ऑयल इन इट। कैन यू प्लीज शेयर हाउ डू यू मेक दैट कढ़ी विद एवरीवन? या उससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता. सो दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम माय गुजराती फ्रेंड्स. ओके, सो गुजरातीज मेक कड़ी बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ Punjabi कड़ी टेस्ट. But yeah, the inspiration came from that. Earlier, I used to see curry is not just a food for me. It has a lot of stories. You know, I'm full of stories. Everything in my life, every object I own has a story. So with curry, I had very sweet memories from my past. I think that also helped. I was like on kind of a deathbed when I was like young, छोटी थी. कुछ सिकनेस ऐसी हुई थी एंड आई वॉज नॉट ईटिंग फॉर डेज एंड डेज. एंड मेरी दादी, शी यूज टू से, वी वर इन अ जॉइंट फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट केटर नहीं होती हैं बिकॉज यू कांट रियली अफोर्ड डूइंग इट राइट. जो बना है सबके लिए बना है, बट एवरीबडी वॉज लाइक कुछ तो खा लीजिए कैसे ना कैसे, कोई बना के खिलाए या कैसे. सो दादी आस्क्ड मी दैट टाइम, इट वॉज नीदर ब्रेकफास्ट और लंच, लाइक इन बिटवीन का कोई टाइम था. शी आस्क्ड मी कि तू बता, जो तू बोलेगी मैं वो बनाऊंगी, पर कुछ एक बुर की रोटी खा. तो मैंने बोला कड़ी बना दो.
एंड माई दादी मेड अ करी। एंड जब तक मेरी दादी जिंदा थी, मेरी दादी मेड करी, और मेरी ननिहाल में सिर्फ मेरी नानी मेड करी। लाइक वी हैड लाइक सारे लोग थे कड़ी बनाने के लिए। सो दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी। तो दादी ने फटाफट बनाई विदाउट, एंड दिस इज हाउ माई दादी यूज टू मेक। कोई मुझे पकौड़ा कड़ी नहीं अच्छी लगती। हाँ, दिस माइट बी अनदर रीजन वाई पीपल थिंक कि कड़ी में ज़्यादा फैट होता है, बिकॉज दे ऐड पकौड़ाज एंड ऑल दैट। आई वैसे भी यूजली आई डोंट लाइक, I like pakoras separate, I like khadi separate, like that. And my dadi quickly made that curry besan or dahi ke sath, and she served. I only had few burkis, and dadi was like me. I never saw my dadi crying in the whole life. Never ever saw tears in her eyes. But that day she said, कि लाइक मैंने इतने तेरे लिए ही बनाई है, किसी के लिए नहीं, तेरी जितनी एक कटोरी बनाई है तो तू कुछ तो खा लेती। So that is like very sweet memory, and I always saw my mother and my dadi like very strict and very strong women, but strict in a sense very, you know, leadership way, like they'll get things done and stuff. So ये मेरा एक good memory थी, very beautiful memory. Whenever I would see curry, like somewhere you will find tears in my eyes. It was like that. And then fast forward, like a few years ago, I had a very bad memory associated with it. So I didn't make curry because बहुत बार मैं कड़ी बनाती थी, फट जाती थी कड़ी. So I was not, I considered कि कड़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है. Okay, so it is not just like a recipe, it was a trauma healing for me as well. I told you the whole story. And I was making curry, and that day I had cold and cough. It is like before this health journey, few years pehle ki baat hai. And we had some conflict at home, and curry was a big topic of fight and all that. That, you know, you still want to eat curry because you are having cold and cough and stuff, and you know. So finally I thrown the whole curry जो मैंने बनाई थी, मैंने फेंक दी थी. उसके बाद वो दिन, आज का दिन है, मैंने कड़ी नहीं बनाई थी. And then you asked me, and I think you gave me curry once. Okay, then that was a challenge for me. एक तो उसके साथ इतना कुछ एसोसिएटेड है, दूसरा मुझे ढंग से बनानी नहीं आती. देन आई सेड कि चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ, अपने लिए ही बनानी है. एंड आई चोज टू मेक करी इन द लंच टाइम, जिस टाइम कोई नहीं होगा घर पे. कोई होंगे भी तो वो अपने अपने काम में होंगे, लाइक दे वॉन्ट नीड टू ईट. सो मैं अपने सिलेक्शन के हिसाब से, अपनी दादी के टेस्ट के हिसाब से बना सकती हूँ. सो आई मेड कड़ी, एंड आई वुड ऐड लॉट ऑफ स्पिनच इन इट. मतलब मैं चंकी वेजिटेबल एंड लॉट ऑफ सीड्स इन इट, लाइक धनिया सीड, मेथी सीड, लाइक काइंड ऑफ, मुझे वो मुंह में आता अच्छा लगता है. बट इफ आई मेक इट फॉर माई फैमिली, किड्स विल कंप्लेन, कितने दाने क्यों डालते हो आप इसमें एंड ऑल दैट, राइट. सो one thing was, I was making it for myself and I could make it the way I want. Second, आई मास्टर द आर्ट. मतलब मुझे लगता है 50 टाइम्स तो बना ली होगी मैंने, एक लाइक इन अ रो, लिटरली लाइक एवरी सिंगल डे. ठीक है. थर्ड थिंग, मतलब कढ़ी बनाने लिए मेरे लिए इतना इजी था. सो आई वर्क इन वेरी लाइक प्रोडक्टिव एंड प्लांट स्लॉट्स. तो कढ़ी मैं दोपहर में बनाती हूँ एंड आई विल ईट फ्रेश. तो इन्होंने मुझे चावल दिए थे, उसमें मैंने 2-3 बार शायद चावल खाएंगे. उसके बाद तो आई जस्ट हैड माई कढ़ी इन अ बिग लाइक बर्तन. आई लिटरली लाइक सिप माई कढ़ी. तो मैं ऐसे बड़े कटोरे, पंजाब वाले बड़े कटोरे में डाल के, तो आई सिप माई करी. सो हाउ आई मेक इट विदाउट ऑयल. सो बेसिकली आई जस्ट ऐड लाइक जितना मुझे बेसन डालना है, नाउ आई नो हाउ मच आई नीड फॉर माई सेल्फ, सिर्फ एक सर्व के लिए. लाइक मेरी सर्व 1.5 सर्व काउंट कर सकते हैं नॉर्मली अगर लोग खाएंगे तो. तो दिस इज, तो 2 बिग टीस्पून में, बिग टेबल स्पून में बेसन के डाल के, उससे डबल दही डालती हूँ. और दही जो इन्होंने ग्रीक योगर्ट लाइट, जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स चेक करके मुझे यहाँ का जो अवेलेबल ब्रांड है वो बताया, वो मैं यूज़ करती हूँ. ठीक है. सो उसमें भी कम फैट है. सो वो सब विस्क कर लेती हूँ, और उसमें मैं पाउडर्ड जो चीज़ें डालनी है, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया मसाला, और मैं कोई मसाले और यूज़ नहीं करती, और हींग, ये सब करके ऐसे पूरा उसको विस्क कर लिया. सारी गांठें खत्म होगी, उसके बाद मैं उसमें उससे डबल ट्रिपल पानी, पूरा लिक्विड ही बना लेती हूँ. एंड देन स्टोव पे जिसमें मुझे बनाना है, बर्तन रख के, पैन रख के, उसको हीट नहीं करती हूँ, पहले उसमें कड़ी डाल देती हूँ. देन आई स्विच इट ऑन. अर्लियर जब मेरी कड़ी फट जाती थी तो वो टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड हो जाता है. जो लिक्विड है वो आपको ठंडा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दही डाली है, और वो तला सरफेस जो है उसका हॉट है. टू क्रिएट दैट रेजिस्टेंस यू पुट ऑयल एंड देन यू क्रैकल जीरा इन इट. बट मैं जीरा डालती हूँ, बट मैं उसमें फिर वैसे नहीं करती, सीधा डाल दिया एंड कीप स्टरिंग, उसको टेम्परेचर को मेंटेन होने में हेल्प कर दो. सो वंस इट स्टार्टेड बॉइलिंग, देन आई ऐड ऑल माई सीड्स, विच इज़ थोड़ा सा अजवाइन,
थोड़ा सा जीरा, मेथी सीड्स, आई लव मेथी सीड्स, एंड धनिया कूट के, धनिया लाइक धनिया के दाने को थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का सा ऐसे हाफ स्प्लिट करके उसमें डाल दिया। अब जब एक बॉईल आ गया ना, उसके बाद यू डोंट हैव टू स्टर, फिर मैं पीछे सिम पे रख दिया, एंड दैट ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आई वुड कुक लंच फॉर माई चिल्ड्रन। दे विल कम फ्रॉम स्कूल ना, तो 1 o'clock के आसपास मैंने, मतलब इट इज़ लाइक सिर्फ 2 ही मिनट मुझे लगे। अब इट विल कीप ऑन बॉइलिंग, एंड आई जस्ट ऐड, अगर मुझे स्पिनच चॉप करके डालना है या धनिया डालना है, सो इट विल जस्ट कीप ऑन बॉइलिंग। सो यू डोंट नीड, नॉर्मली अगर आपको यही किसी गेस्ट को सर्व करनी है, आप ऐसे ही बना सकते हो। एट द एंड व्हाट यू डू, देसी घी का एक चम्मच लीजिए छोटे से तड़का पैन में, उसमें आप जो भी अपना जीरा या लाल मिर्च डाल सकते हो, कड़ी, वो तेज पत्ता होते हैं वो डाल सकते हो, कड़ी पत्ता डाल सकते हो, मेरे पास यहाँ कड़ी पत्ता का प्लांट नहीं है, तो दैट इज वाई डिडंट ऐड। तो वो सब क्रैकल करके आप ऊपर से डालिए। इनफैक्ट लोग लहसुन की कड़ी बनाते हैं ना, लहसुन की कलियां भी इसी में फ्राई करके आप ऊपर से डाल दीजिए। सो दैट विल बिकम योर लाइक यू नो दैट होटल वाली कड़ी, रेस्टोरेंट वाली कड़ी बन जाएगी। सो इट इज़ सच, फर्स्ट इट्स वेरी सूदिंग फॉर मी, आई हैव गुड मेमोरीज विद इट, इट्स वेरी ईजी एंड प्रैक्टिकल फॉर मी, एंड इट्स वेरी फिलिंग। मुझे वो शाम तक फिलिंग रखती है मुझे, और मेरे दांतों को कुछ ज़्यादा काम नहीं, लाइक इट्स लिक्विड, आई जस्ट ड्रिंक इट, राइट? So that is the curry recipe. And the other recipe I forgot to mention earlier, every day I would look forward to chilla. Okay, मतलब रैप, बेसिकली इट्स नॉट चिल्ला, इट्स रैप। हाउ आई मेक इट, जो मूंग दाल होता है, मैं फ्रेश नहीं, मैं पाउडर ही लाती हूँ। जो फ्रेश, जो हरी मूंग दाल है उसका पाउडर है वो, जो स्टोर पे पाउडर मिल गया, उसको मैंने डब्बे में ला के रख लिया। उसके मैं 3 स्पून लेती हूँ, सिंपल पानी से घोलती हूँ और उसमें कुछ भी नहीं डालती, थोड़ा सा लिक्विड ही बना लेती हूँ उसको। एंड देन वट एवर फीलिंग आई लाइक, यूजली सेम फीलिंग आई यूज़, तो आई यूज़ रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा बीटरूट, जिंजर मुझे मुंह में आता अच्छा लगता है, और यहाँ पे विंटर भी है अभी, और थोड़ा सा अनियन, एक अनियन को 4 बार यूज़ करती हूँ, मतलब उसको इतने कट वो करके, इतना सा अनियन बस, और जीरा डाल के, वेरी, एक्चुअली यू डोंट नीड कोकोनट ऑयल फॉर दैट, बट आई जस्ट ऐड वेरी लिटिल, जो जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से, स्टर इट ऑन सिम, और उसके बाद एंड में 50 ग्राम टोफू में डाल देती हूँ उसमें, दैट्स इट। एंड वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट पुट ऑन योर नॉन स्टिक, कुछ जलता नहीं है। इवन ऋतु मेंशन्ड के शी हैड सम फेल्ड अटेम्प्ट्स बिफोर, बट इट्स परफेक्ट। एक ही बार डाल के एक ही बार फ्लिप करना है, डोसा की तरह बेसिकली, एंड देन आई मेक इट रैप, इट्स लाइक oh my god, so mouth melting and so yummy. So yeah, that's my chilla recipe, and she asked me to change it many times, but I said, um, I look forward to it the more, like all these meals I really enjoy. And evening में अभी मैं जो स्टिक हूँ, जो उन्होंने बोला सेम खाना खा रही हूँ, लौकी और जुकीनी, जो तुरई होती है, बस उसको चॉप करके, एक टमाटर चॉप करके कुकर में डाल देती हूँ जीरा डाल के, दैट्स इट। और वो बॉईल होके, और वो मैशी मैशी बना लेती हूँ, इट बिकम्स लाइक अ सूप। She does give me, like, you can have stir fried tofu, stir fried paneer, stir fry caps, वो mushrooms, बट अभी तो मेरा इतना एपेटाइट ऐसा हो गया, लाइक आई डोंट फील, मैं उसी से इतना फुल हो जाती हूँ। सी, ये जुकीनी वाले में कोई एफर्ट नहीं है मेरे लिए, कड़ी में नहीं है, बस सिर्फ फिलिंग बनाना, वो भी मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, जो मेरा चिल्ला है। सो आई थिंक आई मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग इट वेरी टाइम एफिशिएंट। अगर मैं टोटल अपनी डाइट पे काम, कुकिंग करने की टाइम कैलकुलेट बताऊं आपको, तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, इन लाइक सारे दिन में। तो यार 20 मिनट्स नहीं अपने लिए निकाल सकते, तो फिर फायदा क्या तुम्हारे जीने का है? सो या। So I have few points to add. So ऑल्दो मैं चाहती हूँ मेरे क्लाइंट्स का टाइम, कुकिंग टाइम बहुत कम हो, क्योंकि उनको 50 काम भी होते हैं। जनरली मेरे क्लाइंट्स फीमेल है, तो उनको कोई सच हेल्प भी अगर होती है तो भी वो पूरे दिन किचन में रह जाते हैं। बट आई डू वांट देम टू कुक समथिंग फॉर देमसेल्व्स, जस्ट फॉर देमसेल्व्स। ऐसा हो गया है कि दे आर लिविंग फॉर एवरीवन। अगर किसी और के लिए उन्हें खुद की चीजें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ी, बहुत खुशी खुशी दूसरों के लिए उठ जाएंगे, दूसरों के लिए बना के दे देंगे, सब कर देंगे। बट दे हैव लाइक स्टार्टेड लूजिंग देमसेल्व्स। सो वेट कम होनी हो, मतलब वेट तो वैसे भी कम होता है, बट आई हैव सीन दैट देयर इज अ सेंस ऑफ, ऑल्दो उनको लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा काम किया, स्टार्टिंग में लगता है, बट धीरे धीरे ना वो उनको ऐसा लगने लगता है कि मैंने मेरे लिए कुछ किया। एंड it makes them so fulfilled within, it makes them so happy कि okay, I also exist, I also matter, my health matters, and
ये किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कि देखो मैं पतली हो रही हूँ, देखो मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, खुद के लिए। लाइक दे आर, सबका अलग बनेगा, मेरा अलग बनेगा। और अलग बनाने का रीजन मतलब दे आर गेटिंग सो फुलफिल्ड दैट इवेंचुअली वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है। जैसे लाइक आई हैव अ क्लाइंट, शी इज लाइक मुझे तो फैंसी ब्रेकफास्ट ही चाहिए, मतलब उनको वैसा है, तो शी विल पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक श्योर कि एक दिन का भी ब्रेकफास्ट रिपीट ना हो, सारे ब्रेकफास्ट फैंसी हो। मतलब ब्रेकफास्ट फॉर हर, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक उनको ऐसा लगता है कि उन्हें रानी जैसा महसूस होता है जब वो खुद के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना के खाती है। So yeah, like I I just love when women start working for themselves. बाकियों के लिए तो आजीवन से like वो तो I think it's woman heart, it's mother's heart, it's very sacrificing. But yeah, जब वही compassion जो पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा खुद के लिए निकल जाता है, it is so beautiful to watch. Like when I hear audios कि आज मैंने खुद के लिए ये बनाया, it is so I cannot put in words how fulfilling it feels to me. I'm happy that you're doing it for yourself. And about that comfort part, see, you have comfort with the curry. You don't want your chila to be removed. You want your chila as it is. Like chai, एक बार हमने हटा के देखी थी, there was no caffeine related issue with you, but it was like मुझे टेस्ट पसंद है, तो हमने बस उसका मिल्क चेंज कर दिया, फुल फैट से वो लो फैट पे हो गया था, तो चीनी उसकी हल्की कम हो गई थी, बाकी मसाले वसाले आपके हिसाब से थे। सो आई डू इंश्योर कि अगर किसी का कंफर्ट है किसी चीज में तो मैं वो चीज ना हिलाऊं। अगर वो खुद से चाय गिव अप कर रहा है वो उसकी श्रद्धा है, बट मैं खुद से आई वुड नॉट डिस्टर्ब योर पीस। आई वुड लाइक ट्राई टू वर्क अराउंड इट, सो आई प्रायोरिटाइज दैट because it's anyway a long journey, and if you feel like you are doing a diet and it is being forced on you, how long will you sustain? 2 months max. So yeah, I did do that. Okay, do you have some tips for like small tips and tricks which will help our viewers to save their time when they are following a diet? Yeah. So before the practical tips, I would say the mind tips. First of all, always list down your why. Why are you doing it? Okay. If you are doing it for someone else, then you might not sustain it. You might get frustrated and you might put blame on people because you're not taking responsibility. First, you might blame other people कि वो मुझे कह रहा है कि तुम अच्छी नहीं लगती। आप अपने लिए करो। Okay. You should have the responsibility of your decision. और फिर जब चीज़ें वर्क नहीं ना करेंगी, वर्क इसलिए नहीं करेंगी बिकॉज सी आई एम इनटू एनर्जी एंड ऑल दैट, सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम दैट perspective. So when your energy is not aligning with your action, you can't sustain it. And even like no matter how good person is your guide, you would still not be able to see the result. Same food, same situation, same thing might not show you result. तो सबसे पहले तो ना I want to do it for myself. I want to do it like a game. ओके तो गेम में कैसे होता है कि मतलब हम गिर रहे हैं, हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। होली में कैसा होता है, वी इंजॉय दैट गेटिंग गंदा, वी इंजॉय दैट ऑल ऑफ गिरना पड़ना। सो सिमिलरली इसमें भी गिरना भी है, पढ़ना भी है, हर चीज़ है। बट इफ यूर इन राइट माइंड सेट इट डजेंट फील like that. It feels like achievement. It feels like you're not giving up, you're going to the next phase. बिकॉज इसमें फेजेस होते हैं, अगर हम इनके लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, लॉट ऑफ वर्ड्स तो मैं बोलती हूँ कि मुझे समझ नहीं आए, मुझे बताइए, लाइक प्लेटिव एंड ऑल दैट। सो शी एक्सप्लेन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद योर माइंड सेट, स्टार्ट विद द राइट माइंड सेट, राइट वाई। The money cannot buy you results. Let me tell you, the right person guiding you can't buy you results. Your responsibility, your mindset is the 80% contributor. So start with the responsibility. Second thing, pre-plan. Pre-plan initially first week what I did. I'm anyway pre-planner, but for specifically my diet, first week what I started doing, like if I have beans in my diet for 1 week, what I used to do कि एक वीक की इकट्ठी ग्रॉसरी लाती हूँ, तो उसी दिन जिस दिन ग्रॉसरी लाती हूँ वॉश करके ड्राई करके सब उसी दिन चॉप करके रखा। बट देन आई फेल्ट लाइक इट वाज टू आवर एफर्ट फॉर मी। तो फिर मैंने क्या करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बेल पेपर, कैप्सिकम, राइट? सो आई नो हाउ मच बेल पेपर आई वुड नीड इन अ डे, सो इट्स रफली लाइक हाफ टू 1/3 ऑफ द कैप्सिकम। तो मैं क्या करती थी, ये मील मैंने, जब मेरा मील कुक हो रहा है ना, आई एम वेटिंग माई चाय टू गेट ठंडी, आई एम वेटिंग फॉर माई फिलिंग टू गेट कोल्ड, तो उस टाइम पे मैं ना
नेक्स्ट बेल पेपर नेक्स्ट मील की कट करके रख दूंगी, सिर्फ नेक्स्ट तक का. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट 100 किलोमीटर्स, यू जस्ट टेक स्टेप्स टू नेक्स्ट 1 किलोमीटर, दैट्स इट. तो वो मैं करती थी. सो दैट रियली हेल्प्स. दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ ड्राइव. जो आपका नेक्स्ट मील है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नेक्स्ट मील है कड़ी, तो जैसे ही मैं अपना किचन मॉर्निंग में साफ करके आती हूँ ना, मैं पेंट्री जो मेरी अलमारी है जिसमें सारा राशन रहता है, उसमें से अपना बेसन वाला डब्बा शेल्फ पे रख दूंगी. जो मेरा विस्कर है वही है, मैंने ड्रॉर में से ही निकालना है, उसको मैं वहां रख दूंगी. जो मेरा डोंगा है जिसमें मैं बाउल जिसमें विस्क करती हूँ, उसको वहां रख दूंगी. दैट इज लाइक जैसे ही आप आओगे ना कुछ और, अपने माइंड के ट्रैप में आके, दैट विल रिमाइंड यू, वाई यू आर डूइंग वट यू आर डूइंग. थर्ड थिंग, इफ यू कैन पुट एनी विजुअल रिमाइंडर्स, that will really help you. For example, you can just create a little wallpaper. You can even write on paper your why, you can write, or your journey, and just put it on your phone. Every time you see your phone, फोन तो आपके पास ही रहेगा. व्हेन यू आर ट्राइंग टू मंच, इट विल रिमाइंड यू. थोड़ी शर्म आती है, सच्ची कह रही हूँ. और शर्म हमें दूसरे के कहने से ज्यादा खुद के अंदर से आए ना, दैट वर्क्स वेल, बिकॉज दैट क्रिएट्स ड्राइव एंड यू कॉन्कर योर माइंड, जो आपको ट्रैप में डाल रहा है ना, वीक बना रहा है. थर्ड थिंग, you celebrate your milestone. See, you have beautiful coach जो आपका हम सफ़र है, उसके साथ जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, even acknowledge your failures as well. We all are humans, we all have our personal lives. Sometimes we, mostly people, especially women, they emotionally eat. कुछ किसी ने कुछ बोल दिया किसी इवेंट में या कोई ऐसा आया था, and then she just she felt like छोड़ो सब हटाओ, and she started eating all these sweets and stuff. Just share with Ritu that today I'm struggling emotionally. She's not just, let me tell you, she's like, our relationship now evolved. It's like as if a lifetime relationship. We've been together for lifetimes. It feels like a soul reunion. And why it is? Because we share so much. We don't just talk about, I'm not saying that you keep on asking her, oh, you're gonna come with me or for shopping and stuff. I'm not saying that. I'm saying whatever you feel that might be creating a blocker in your journey, share with her. You are only dealing with one. Arsha is only dealing with one Arsha's mind. She is dealing with hundreds of mind like you. तो आज आपकी प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन उनको पता है दिस इज वेरी कॉमन. Sometimes it's not even external, it's just internal, right? So you might have, I'll tell you one example. I had trauma with mangoes. आई हैड, बचपन में मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, सिकनेस हो गई थी अगेन. उस टाइम भी आई वाज लाइक, लोग रिश्तेदार पता लेने लग गए थे कि आई एम अबाउट टू डाई. मेरा नोज़ का कुछ प्रॉब्लम था, मेरा नोज़ ब्लीड करता था. इट वॉज नॉट द रेगुलर नोज़ ब्लीडिंग, समथिंग एल्स, समथिंग बिगा. तो एक बार क्या हुआ था, आई वॉज ईटिंग मैंगोज इन समर एंड मेरा नोज ब्लीड होने लग गया. हालांकि देर वॉज नथिंग टू डू विद मैंगो, ऑल्दो लोग कहते हैं कि मैंगो की तासीर गर्म होती है, बट इट वॉज जस्ट माई फर्स्ट मैंगो. आई वॉज जस्ट लाइक, आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग. उसके बाद, कैन यू बिलीव दिस, आई डिड नॉट ईट मैंगो फॉर 32 years. I was blaming mango. Because that pain, that trauma I get through, जब मेरा वो नोज ब्लीड करता था, उसके साथ और क्या क्या आता था ना, I did not want to face that and I did not want to eat mango to remember that. So similarly, आपका कोई ऐसा फूड भी हो सकता है, like suddenly there is nothing external, but after eating some food, you're feeling like that, you're feeling like giving up, you're feeling like a failure, you are remembering all those bad things somebody has said something to you in the past, like तू कुछ नहीं करने वाली, तेरे बस की नहीं है, like all those bad memories. It might have got triggered just because of the food. So just share with her. She knows what questions to ask from you to get you brainstorm the blocker. डो बस एक चीज दे दो ऋतु को, या फिर जिस भी हेल्थ कोच के साथ आप काम कर रहे हो, खुद को ब्लॉकर मत बनाओ. बाकी जितने ब्लॉकर है ना, उनको पता है यू आर इन सेफ हैंड्स, दे विल गाइड यू. So yeah, these are the tips I think which really helped me. Just pre-plan your next meal. Keep on reminding yourself. Doing small preps, micro actions, mega wins. It takes you a long way. And the third and the last thing I would say, this is a journey. It's not just destination. एज रितु सेड, जब रितु ने मुझे बोला हम 71 के 1 टच कर चुके हैं अभी, तो रितु इज सेइंग लाइक आई कांट वेट टू सी इट गो इन 60s. मैंने बोला मज़े करने दो, दिस इज़ द लास्ट टाइम इन माई लाइफ कि इट माई वेइंग स्किल इज प्लेइंग इन 70s, राइट? सो
you have that fun attitude towards your life. It's not end of life. अगर हम नहीं भी कर पाएंगे मान लीजिए, it's not end of life. We are so blessed with so many other things in our life. So it's okay. Just accept yourself and keep on taking actions. So yeah, that's all I would say. I can go on and on. Talking to Arsh is always so insightful. ये हल्के हल्के में ऐसी बात बोल जाती है कभी कभी मैं पूरे दिन सोचती हूँ क्या बोल गई बंदी है लाइक itni depth. I learn so much from like my clients, but I have specifically from you have learned so much. I mean, I'm so glad that you chose me, even though I had no at that time. Yeah, We both manifested each other. yeah. We both manifested each other. Yeah. Before आपके पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को आपकी जरूरत है. And one Yeah. thing which just came to my mind, like while talking today, one was your celebrity manifestation, and the other one was your NRI, being your NRI client as well. So we Yes. never, saw it from that perspective. So yeah. Yes. Yeah. And she was so humble. एक महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ओके आई एम टॉकिंग टू मिसेस इंडिया ओवरसीज 2024. बताती ही नहीं है ये. शी इज सो डाउन टू अर्थ एंड हम्बल. वो एक दिन उनने पता नहीं फोटो शेयर की, मेंशन किया, फिर मुझे याद आया कि ओके आई डिड थिंक अबाउट इट, आई डिड मैनिफेस्टेड इट लाइक, बट पता ही नहीं था अभी तक तो. लाइक नॉर्मल आई आई वाज सीइंग इट एज ओके, मेरे पर मेरा पहला पहला फॉरेन क्लाइंट है, वैसे देख रही थी मैं. Yes. So I think, there's a lot for everyone to take from what you've said. Um, so coming to our last segment. So डाइट के पहले ऐसे कोई चीजें थी जिसपे आप बिलीव करते थे, बट डाइट के दौरान आपको पता चला, लाइक ऐसे कोई हेल्थ फैक्ट्स या वेट लॉस रिलेटेड चीजें जो पहले आप बिलीव किया करते थे, Hmm. पर ड्यूरिंग द जर्नी इट वाज अ शॉकर के हैं, लाइक ये Yeah, झूठ so था. much. See, we are YouTube scholars, okay? So कोई भी हमारे साथ कोई शास्त्रार्थ ना कर ले. It is like that, right? हम तो मॉर्निंग ड्रिंक से वेट लॉस कर सकते हैं. Of course, it helps you in your, Yeah, I asked you that. So that was one of, like, I'm not denying that it will help you, but that is the only thing which will help you. Or if it's not in your diet, and then you won't lose weight. Like those are the myths, right? People think कि जैसे ही मैं डाइट पे आऊंगी, पहले थिंग शी विल गिव मी अ मॉर्निंग ड्रिंक, देन शी विल गिव मी माय नट्स, then the other things start. So this was this is what the myth was broken. That was the first thing. Second thing, so as Ritu mentioned, we've been together almost 3 months, and I haven't done any exercise yet. Like I should do. I know some of this, like I know I'm making excuses, okay? So I would accept that. वो भी मेरा कहीं ना कहीं ना ट्रोमा है फिजिकल वर्कआउट के साथ, सो आई शुड गेट ओवर इट. बट या लेकिन ये एक बहुत लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अब मैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम किया था खुद से, I used to go to gym, although I used to just do yoga, very light exercise. I'm not like, I'm very active person, but machines के साथ मेरा नहीं जमता है like that. So that myth is broken. Like if you're still taking baby steps, like you don't have to hold yourself कि मैं gym जाऊंगी तो ही weight lose करूंगी. तो शी मेड श्योर कि जो भी मेरी सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से शी कैन जस्ट हेल्प मी प्रोग्रेसिंग, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही हो. सो दिस वाज द सेकंड मिथ व्हिच वाज ब्रोकन. थर्ड थिंग, आई एक्चुअली एवरी टाइम आई फॉरगेट टू टेल यू, जब मैंने फर्स्ट टाइम भी वेट लूज किया था, अब मुझे नहीं पता यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर, बट एक तो रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, वो जो सैगीनेस आती है स्किन की, वो तो है ही. मतलब मुझे इस बार बहुत डर था. पहले तो ऐसा था कि आफ्टर लूजिंग वेट आई वुड हैव माई चाइल्ड, सो आई वुड काइंड ऑफ जस्टिफाई कि मेरे डिलीवरी और उसकी वजह से आ गए. बट आई वॉज वेरी स्ट्रेच मार्क्स से मैं आई वॉज कंसर्न. सेकेंड थिंग, वट आई एक्सपीरियंसड इन द पास्ट कि मेरी कंप्लेक्शन डार्क हो गई थी. ओके, while losing weight. अब मुझे नहीं पता, I have nothing like, maybe I was not, although I didn't do any crash diets or anything, maybe I was not eating the right nutrients, and also the mindset I had then and mindset I have now, it's very different. That is 2013.
and now it's 2025, right? Like 12 साल हो गए हैं. So of course I grown a lot. So I don't know what is the difference, but yeah, this was मतलब मैं कहीं ना कहीं इसके लिए scared थी. Complexion, everything is fine, but complexion I meant मेरा ना ग्लो वो हो गया था, लाइक ग्लो ऐसे बुझा बुझा सा लुक हो गया था. सो इट्स नॉट लाइक गोरा और काला और एनीथिंग लाइक दैट, बट इट्स लाइक दैट शाइन. थर्ड थिंग, लाइक मेरे हमेशा से माइंड में था कि बाल बहुत जाते हैं वेट लॉस में. अब ये क्यों था, अब मुझे एग्जैक्टली आई कांट कोट एनी रेफरेंस कि क्यों था, लेकिन पता नहीं, मैंने कहीं वीडियो में देखा था या कुछ सुना था, लाइक दीज वर फ्यू थिंग्स. एंड फोर्थ थिंग, मेरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट था. एज यू डू योर फर्स्ट असेसमेंट यू आस्क लाइक दोज क्वेश्चंस इन क्वेश्चनरी, तो मेरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट था. तो आई नेवर हैड, एज आई टोल्ड यू, लाइक आई वाज क्वाइट एक्सेप्टिव टुवर्ड्स माय बॉडी. तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कम करूँगी, ऐसा ना हो कि कोई जगह से लाइक बहुत ऐसे हो जाए और कोई जगह से मैं बिल्कुल ही सुकड़ी लगूं, एंड कोई जगह से मैं अनइवन नहीं मुझे जमता. तो दिस वाज अनदर थिंग. सो बहुत ही सिली चीजें हैं, बट आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज दोस आर द थिंग्स यू आर डीलिंग विद. लाइक अगर रोज बाल इतने, और मेरे बाल लाइक लिटरली कमर तक अब और लंबे हो गए ड्यूरिंग दिस जर्नी. मेरे बाल और ज्यादा अच्छे हो गए. आई टोल्ड यू दिस एज वेल. आई डोंट नो, लाइक ऑफ कोर्स आई फील कि मैं अब ज्यादा फाइबर खा रही हूँ, नो डाउट. मतलब मैं वेजीज, बीट रूट का इंटेक मैंने बहुत बढ़ा दिया है. आई वाज टेकिंग माय एबीसी जूस एज वेल, राइट? दैट वाज ऑप्शनल एनीवे, इट वाज नॉट like I had to take it, but I think beetroot helped me a lot. Oh yeah, one major thing I completely forgot to tell you. My these tests, right? So I'm going to get my test done. I have always been anemic, so that was another reason why I was losing hair earlier, है ना? Iron low है. Right now what I'm feeling, what my body is saying, this will be the first time my doctor will be happy and she might give me a trophy that oh yeah finally. और मैं उसको पूरे झूठ मारूंगी कि मैंने जो आपने मुझे सप्लीमेंट्स दिए थे आयरन के, मैंने वो खाए. हर बार मैं डब्बी की एक्सपायरी डेट हो जाती है तो फेंक देती हूँ. आई डेंट ईट एनी सप्लीमेंट्स. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट ईट, ओके, यू कंसल्ट विद योर डॉक्टर. लेकिन मैं गंदी बच्ची हूँ इसमें, क्योंकि आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ चीज़ें जो फैक्ट्री में बनी हुई हैं. सो आई वॉज नॉट ईटिंग those, but the symptoms जो फील करते हो ना आप लो आयरन के, those are gone. So I am very sure अभी मैं 1 week में results लूंगी अपने, like I'll go and get my blood test done, and it so that myth कि भाई वो iron and all that, so that is without anything, we haven't worked specifically on that, but that is dealt with as well. So yeah, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी myths हैं. लाइक फिर वही कि भूखा रहना पड़ता है, यू विल फील दैट एनर्जी एंड ऑल दैट, और वो सब. म, अगर आप वो सारा कुछ फील कर रहे हो, यू आर नॉट विद द राइट पर्सन और यू आर नॉट विद द राइट माइंडसेट. सो या. एक्चुअली पता है आपका, आप जो ये चीजें कह रहे हो ये होती है. आपके साथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरा सिर्फ गोल आपको कैलोरी डेफिसिट में करना नहीं था. मेरा एजेंडा था कि इनका विटामिन ए बी सी डी सब पूरा. आपने देखा होगा मैं 25 मिनट की धूप भी लिख के देती थी कि धूप लेके आना. आपका आपका विटामिन ए बी सी डी रोज आपको जितना खाना चाहिए मैं आपके डाइट में उतना दे रही थी. तो जैसे जो मल्टी विटामिन होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम होता है, तो आप अपने मन की तसल्ली के लिए खा सकते हो. उसमें से थोड़ा एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा नहीं होगा, पता नहीं, वी डोंट नो. बट अगर आप होल फूड से खा रहे हो तो पक्का आपकी बॉडी को लगेगा. तो जैसे आप बहुत ज्यादा बेल पेपर्स आपकी डाइट में है अभी, और आप देखोगे शाम को या तो स्ट्रॉबेरी है या गुआवा है. तो जैसे आपका लोग को लगता है विटामिन सी सिर्फ नींबू में होता है तो सुबह वो हनी लेमन वाटर पीते हैं. ऐसा तो आप मैंने ऐसा तो आपको कुछ नहीं दिया. बट आपकी जो ओवरऑल डाइट थी, जैसे कैबेज, उसमें कैबेज उसका पार्ट है, बेल पेपर्स उसका पार्ट है, फ्रूट्स में डाल देती हूँ, तो मैं इंश्योर करती हूँ कि विटामिन सी कंप्लीट चेक. तो वो मैंने कॉन्शियसली वैसा रखा था. एंड एज फार एज हीमोग्लोबिन इज कंसर्न, तो it's like heme is iron, but globin is protein. So if you don't have sufficient protein in your body will not be able to use that iron. So although you were getting those top ups of iron, but you mentioned that your body is like not absorbing it. So I took care of the protein part. तो जो आपकी बॉडी में आयरन था वो सही से सही जगह यूज होने लगा था. That's the reason. That's why your skin is like glowing again. Yeah. So yeah, that's the reason. एंड वन थिंग टू मेंशन, मैंने अपने पूरे जीवन में
इवन लाइक डिलीवरीज के बाद भी आप अच्छी डाइट खाते हो, प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ध्यान रखा है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैंने इतना प्रोटीन खाया है। लाइक प्रोटीन इन अ सेंस, नॉट जस्ट पाउडर, लाइक द होल इनटेक। ओवरऑल सो आई थिंक दैट्स 50 लाइक, ग्राम्स तो आपकी डाइट से आता है, वो बस एक स्कूप 1.5 स्कूप जो हम लेते हैं, दैट इज द सप्लीमेंट पार्ट। तो लाइक अभी भी 70% आपका प्रोटीन आपकी डाइट से ही आता है। यस। सो एनी फाइनल वर्ड फॉर आवर फीमेल ऑडियंस जो आपको देख रही है, जो आपसे अभी बहुत इंस्पायर होंगी? okay, so if I and Ritu, like our this conversation can be even one drop किसी के माइंड में, कुछ माइंडसेट शिफ्ट के लिए या कोई मोटिवेशन के लिए, एक्शन के लिए ना, आई थिंक हमारा ये जो समय है वो सार्थक हो जाएगा इन्वेस्ट करना। बट वन वर्ड आई वुड से कि यार सोचो मत यार, यहाँ मत, प्लीज हलवाई पने से बाहर आ जाओ, जलेबियां यहाँ मत बनाओ, जस्ट डू इट, जस्ट हॉप ऑन टू दिस जर्नी विद हर। आप ना, चलो एक वर्डिक्ट होती है, हम अपने माइंड में वर्डिक्ट बना लेते हैं, या तो वेट लूज करने के लिए, या वेट मैनेजमेंट के लिए, या फिर बंदे के लिए, ठीक है। एनीवे हम एक नेगेटिव जोन में हैं। जैसे अगर मैंने ये बना लिया कि मैं वेट लूज मैं नहीं कर सकती कभी, एनीवे मैं नेगेटिव जोन में हूँ, कुछ बदल नहीं रहा उसमें, कोई ये बंदी मेरे लिए शायद सही नहीं है, एनीवे मैं नेगेटिव जोन में हूँ, तो ये नेगेटिव जोन एटलीस्ट एफर्ट लेके वर्डिक्ट को वेरीफाई कर लो, तो आगे से एक थोड़ा पक्का वर्डिक्ट हो जाएगा। जस्ट टेक एक्शन। बैठे बैठे अपने दिमाग में जलेबियां नहीं बनाओ, और यूट्यूब से तो महाज्ञानी मत बनो, ठीक है। मैं खुद यूट्यूब पे काम करती हूँ, यू नो, आई वी नो, लाइक यू नो, शॉर्ट्स में हम कितना सिखा देंगे आप लोगों को, एंड योर जर्नी इज कस्टमाइज जर्नी। So when you have someone who is like really investing their, like her, I always call it 3H: head, heart and hands, then वो तो हाथ ऐसे करके खड़ी है, अगर आप उसके हाथ में दोगे, then you know, you will be able to enjoy this journey and just hop on। ज़्यादा सोचो मत, सोचने ये नहीं पता कल हमने जगना है कि नहीं, इतना सोचो नहीं, टेक एक्शन। And this is not coming from a regular Nari. This is coming from a Wonder Nari. So everyone just listen to her, trust her. Yeah, thank you।